Hello everyone, welcome to Study IQ. In today's video, we are going to discuss different kinds of writs under the Indian Constitution. So let's understand that. Before I start with the video, I want to share some information regarding our app, that is Study IQ app, जो Android plus iOS दोनों पे available है. If you download this app and log in into this app, there are a lot of benefits which you can get free of cost. You don't even have to pay anything or buy a course because we have created many courses which are free regarding current affairs, regarding essays, जो भी latest कोई news होती है that. So many teachers have done that. There are a lot of mock tests are available, quizzes are available, which you can try and know where you stand in your preparation. Also, in when you download the app and you look into it, you'll also realize that there are subject specific courses also जो कि otherwise आपको पता नहीं चलता, right? So if you download that app, you'll get it that हो सकता है आपको पूरा कोई batch नहीं लेना है, but you want to grow your understanding more of a particular subject, right? So you can access to that subject and of course do it. ऑल्सो इन दी ऐप वी ऑल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग, उसमें आपका काउंसलिंग फॉर्म्स भी हैं जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा. अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है और यू आर कंफ्यूज अबाउट योर प्रेपरेशन, यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, राइट? सो वी प्रोवाइड काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स. फॉर दैट देयर विल बी अ गूगल फॉर्म, यू फिल दैट फॉर्म, यू फिल योर इन्फॉर्मेशन एंड देन विल गेट बैक टू यू, राइट? तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है. एज यू नो दैट स्टडी IQ हैज बीन teaching for UPSC exam from past decade, right? So we have a lot of experience in explaining things to students. We understand from where problems can happen. So based on that, we have created our courses. ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको ऐप में मिलेंगी ये आपको वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होती है, और अगर अवेलेबल होती भी है so it's very difficult because the design of website is different from the app, right? So if you download the app, you'll get access to many things. It's something you don't have to pay for, so you just have to download it and log in through your phone number or your email address. Okay, if you need anything else, any other information you want, you can ask the team and we'll be very happy to provide you with that. Now let's move on with the video. Today, as you know, we are discussing the kinds of writs, different kinds of writs under the Indian Constitution. पहले हम देखते हैं writs होता क्या है. These are formal written orders issued by a court. कोर्ट से मेरा मतलब है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ये ऑर्डर्स होते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं रिगार्डिंग स्पेसिफिक थिंग्स. कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जिनमें ही रिट्स इशू हो सकती है, वही हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे. दे सर्व एज लीगल रेमेडीज टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स. जनरली जो रिट्स होती हैं वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ही इशू की जाती है. दैट इज अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, कोई सिटीजन है, जो सिटीजन के लिए अवेलेबल है, कुछ फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, राइट? तो किसी की भी राइट का अगर वायलेशन है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, एंड यू कैन इन्फोर्स दैट फंडामेंटल राइट. और वो इन्फोर्समेंट थ्रू रिट्स होता है, right? Issued primarily by the Supreme Court and High Courts under Article 32 and 226 of Indian Constitution. जो writs है वो Supreme Court और High Court ही issue करते हैं under the Indian Constitution. But if you'll read the provision, you'll also find that Parliament, if want, can extend the jurisdiction. जो आज तक हुआ नहीं है. That is why we can primarily say that the writ jurisdiction lies with the Supreme Court and the High Court. आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, जो हाई कोर्ट है उसका रिट जुरिस्डिक्शन इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट्स रिट जुरिस्डिक्शन. रीजन बी, Supreme Court can only issue writs for the enforcement of fundamental rights. High Court can issue writs even for the enforcement of legal rights. तो उसका थोड़ा वाइड है. जो आप अगर आपको डिटेल में जानना है तो you can read Article 226 and you will get all the information. There are 5 kinds of writs. ये पांचों का नाम आपको पता होना चाहिए if you are preparing for any exam, because polity is part of every subject, every exam, right? कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो polity उसका पार्ट है. पांचों writs आपको पता होनी चाहिए कौन सी है. Habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. These are the 5 kinds of writs which are available. अब एक एक करके इनको समझते हैं. Let's start with habeas corpus. Habeas corpus का literal मतलब होता है you may have the body or produce the body. पर्पस क्या है इस रिट का? टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन. देखिए, अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 कहता है देयर इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट? तो आपकी जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है उसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है अंटिल अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो अगर आपको किसी ने अनलॉफुली डिटेन किया है, वो कोई पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकती है और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है. अगर किसी ने अनलॉफुली डिटेन करके रखा हुआ है तो कोई इंसान आपके बिहाफ पर रिट फाइल कर सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस, एंड देन आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग कोर्ट विल इशू द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. और
जो जिस भी इंडिविजुअल ने डिटेन या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने डिटेन करके रखा है उनको ऑर्डर देगा कोर्ट थ्रू दिस रिट टू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट। राइट, तो हेबियस कॉर्पस की रिट इस पर्पस के लिए यूज की जाती है। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड बाय द पुलिस द कोर्ट कैन ऑर्डर देयर रिलीज। तो अगर किसी पुलिस ने अगर किसी को इलीगली डिटेन किया हुआ है तो आप कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हो, एंड देन कोर्ट विल ऑर्डर द पुलिस ऑफिसर और द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस दैट पर्सन हु हैज बीन इलीगली डिटेन्ड टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, कि आप यहाँ हमारे सामने उसको पेश करो। तो ये हेबियस कॉर्पस की रिट होती है। देन वी हैव मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसमें पर्पस क्या है? टू डायरेक्ट अ पब्लिक ऑफिशियल और बॉडी टू परफॉर्म अ ड्यूटी दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू डू। कोई भी ऐसा काम जो भी किसी पब्लिक ऑफिसर या किसी पब्लिक बॉडी को करना चाहिए, दे वर सपोज टू डू इट एंड दे आर नॉट डूइंग इट, और एंड बाय नॉट डूइंग इट दे आर वायलेटिंग अ फंडामेंटल राइट। तो उस सिचुएशन में आप कोर्ट में मैंडेमस की रिट फाइल करते हो, और आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट देन इशूज द रिट ऑफ मैंडेमस, और जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको कमांड करती है टू डू इट्स अथॉरिटी टू डू इट्स जॉब। जो भी आपको करना चाहिए वो उसको फिर कमांड करेगी और उसको फिर करना पड़ेगा। राइट, हमेशा याद रखिए, अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के कोई काम ना करने से आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, then you can go to the court, Supreme Court or the High Court, file a writ of mandamus, and then after considering everything, if there is really a violation of fundamental right because of not doing something by that public official, then court will issue the writ of mandamus और उनको वो डायरेक्ट करेगी, कमांड करेगी to do the job. Example, the court orders a government officer to issue a license if all the requirements are met. लाइसेंस अगर है आपका या पासपोर्ट है आपका, वो आपने जितनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल कर दिया, बट स्टिल द पब्लिक ऑफिसर इज रिफ्यूजिंग टू इशू द लाइसेंस और द पासपोर्ट टू यू, देन यू कैन फाइल अ रिट ऑफ मैंडेमस इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, and then after considering everything, after considering that whether you have actually fulfilled all the requirements or not, and if you have, then court will direct the public officer to issue the license or the passport. तो कमांड, मैंडेमस का मतलब है टू कमांड, तो कोर्ट वहां पे कमांड करेगी पब्लिक ऑफिसर को कि भाई आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं और आपके रिफ्यूज करने की वजह से किसी की फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, एंड वाया द रिट ऑफ मैंडेमस द कोर्ट विल कमांड दैट पब्लिक ऑफिसर टू डू हिज जॉब, राइट, एंड प्रोटेक्ट द राइट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। देन वी हैव प्रोहिबिशन। थर्ड काइंड इज प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू फोरबिड। पर्पस है इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। जब अगर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है और उसके सामने कोई केस है या कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट वो ऐसा पास करने वाले हैं जिससे उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सीड होगा। हर एक कोर्ट के अपने एक लिमिटेशंस हैं, जुरिस्डिक्शंस हैं, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अगर कोई कोर्ट है उसका उसका जुरिस्डिक्शन डिफाइंड है, आप उससे बाहर जाकर कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड करने वाली है तो फिर वो उससे जो हाई कोर्ट है उसमें एक रिट फाइल कर सकते हैं ऑफ प्रोहिबिशन, और फिर हाई कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग विल इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड विल डायरेक्ट द कोर्ट फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। एग्जाम्पल, a high court stopping a lower court from hearing a case beyond its authority। तो कोई केस अगर अभी देखिए जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सीड हुआ नहीं है, होने वाला है, लगता है कि जो ये कोर्ट है ये एक ऐसा केस ले रही है जिसमें जो जिसका इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उस सिचुएशन में प्रोहिबिशन की रिट जाएगी कि वहां फोरबिड कर देंगे, पहले ही प्रोहिबिट कर देंगे दैट यू कैन नॉट गो अहेड विद दिस, आपके पास इस पर्टिकुलर इशू को डील करने के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो उस सिचुएशन में प्रोहिबिशन की रिट है इशू होती है, दैट इज यू आर प्रोहिबिटिंग, द जुरिस्डिक्शन इज नॉट एक्सीडेड येट बट इट इज अबाउट टू एक्सीड। तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट विल इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। Then we have certiorari. It means to be certified. Purpose क्या है? Issue to quash the order of a lower court or tribunal that has exceeded its jurisdiction or violated principles of natural justice. देखिए prohibition में क्या था कि अभी तक exceed हुआ नहीं है, the lower court is about to exceed the jurisdiction, ऐसा है जो हालात है, circumstances है, देख के लग रहा है, और they have took up a case which they were not supposed to, right? So in that situation you will file the writ of prohibition. Certiorari की रिट फाइल होती है when the lower court has actually or the tribunal has actually exceeded the jurisdiction। उन्होंने कोई ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया है and now the order needs to be quashed,
क्योंकि जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया है या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है, उनके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उस पर्टिकुलर ऑर्डर को पास करने का, फिर भी उन्होंने किया, तो अब उसको क्वॉश करना पड़ेगा। तो जब क्वॉशिंग करनी हो किसी ऑर्डर की, तो उस सिचुएशन में कोर्ट, जो हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा, वो सर्शियोररी का रिट इशू करता है। तो प्रोहिबिशन में अभी एक्सीड हुआ नहीं है, होने से पहले आप प्रोहिबिट करते हो, और सर्शियोररी में द जुरिस्डिक्शन इज एक्सीडेड, द ऑर्डर इज ऑलरेडी पास्ड एंड नाउ इट नीड्स टू बी क्वॉश्ड, उसको खत्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट क्वॉशिंग एन अनजस्ट रूलिंग बाय अ ट्राइब्यूनल। तो वो रूलिंग आ गई है, जजमेंट ऑर्डर आ गया है, अब कोर्ट उसको आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग इज क्वॉशिंग और उसको खत्म कर देगा। तो जब एक्सीड हो गया है तो सर्शियोररी की रिट इशू होगी, और होने से पहले प्रोहिबिशन की रिट इशू होती है। नाउ quo warranto, meaning by what authority, पर्पस है टू चैलेंज अ पर्सन राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने या किसी इंसान ने कोई एक ऑफिस होल्ड किया हुआ है एंड दैट इज क्वेश्चनेबल, तो उस सिचुएशन में आप को वारंटो की रिट इशू करते हैं, जिसमें कोर्ट ये जानना चाहता है कि आप उस पोजीशन में किस अथॉरिटी से है, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग इन दैट प्लेस। तो वहां पर को वारंटो की रिट इशू होती है। एग्जाम्पल, चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इनएलिजिबल पर्सन एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो यहां जब आपको किसी की अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना हो तो को वारंटो की रिट इशू होती है। कंक्लूजन, रिट्स आर पावरफुल टूल्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है किसी एक्शन की वजह से, पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट की किसी भी एक्शन की वजह से, तो आप कोर्ट्स में, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, यू फाइल द रिट्स डिपेंडिंग ऑन द वायलेशन, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल चूज द काइंड ऑफ रिट यू हैव टू फाइल, और फिर वहां से आपको रिलीफ मिलता है। The judiciary plays a crucial role in upholding constitutional provisions through these writs. Citizens should be aware of these remedies to safeguard their rights. It's a very basic thing which every citizen should know. इंडिया में बहुत कम लीगल अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं होता अगर उनकी फंडामेंटल राइट्स कई सालों तक वायलेट हो रही होती है, उन्हें यही नहीं पता होता, उसकी रेमेडी तो फिर बहुत दूर की बात है। Right, so we should take conscious effort, make conscious effort in knowing about our rights, और कम से कम जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, और उनका अगर वायलेशन है तो कैसे हम कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। राइट, so this is it. Thank you so much for watching. Again, I want to tell you that we in the description box we have a counseling form. Fill your information and talk to our experts for your strategy or better preparation, right? So thank you so much for watching. Keep learning.